We went to the night market last night. It was so crowded. Yeah. It's so confusing. We ended up not buying anything. Just surprise. सुबह सुबह 7 बजे हमें ये कोजी वियतनाम से जो हमने ट्रिप बुक की थी हमें लेने आ गई हमारे होटल। एंड आज हम जा रहे थे Ninh Binh एंड Tam Quoc विलेज। यहाँ हमें रोका गया है वो कंफर्ट स्टॉप। एंड अगर किसी को कुछ सुवेनियर्स ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी कॉस्टली है तो इट्स बेटर टू जस्ट बाय फ्रॉम Hoi An या Da Nang, वो वहाँ चीपर पड़ेगा। बट द वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे काफ़ी क्लीन है। तो अगर आप देखना चाहें तो बस आप यहाँ आके देख लें। ये पीछे फूड कोर्ट है। एंड अभी हमने यहाँ से बान मी लिया है। बान मी इज़ बेसिकली आपका सैंडविच है जिसमें आप पोर्क मिलता है, बीफ मिलता है, चिकन है, विद वेजिटेबल्स भी मिलता है। एंड जो हमने लिया है विद चिकन उसका कॉस्ट है 40,000 डोंग। और भी कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है खाने के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रूट्स, यहाँ फ्रूट्स हर कंफर्ट स्टॉप की जगह पे आपको ज़रूर फ्रूट्स मिलेंगे, बन्स मिलेंगे, नट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉल्ट कॉफ़ी बहुत फेमस है यहाँ का, एग कॉफ़ी बहुत फेमस है यहाँ का, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बनाते हैं, टेस्ट थोड़ा अलग है। एग कॉफ़ी में से बिल्कुल भी एग का टेस्ट नहीं आता है, इट्स वेरी क्रीमी। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ज़रूर you see, only two members inside. Yeah, the wife and husband. Yeah. This is his home. Really? This is his home. तो हम Ninh Binh आ चुके हैं और इस समय ये हमारी बस खड़ी है और हम आ चुके हैं अपने पहले दिन का पहला इवेंट, दैट इज़ साइकिलिंग टूर। ये एक 3 किलोमीटर्स का साइकिल टूर है जो कि हम 40-45 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टाइम साइकिलिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो चलिए। Want to be the king, yeah, and he have to win 12 army to be the king, yeah. And here, the picture here show the ceremony to be the king of the Dinh Tiên Hoàng, yeah. And Lê dynasty open. Lê Hoàng is very successful king, yeah. So is that Li Huan related to the previous king or no? No, yeah. In fact, Dinh Tiên Hoàng king, he was died by poison, by pork in the dinner. So that's why the local people here, they don't worshiping pork to the king. Yeah. Here, the queen gave the power to Lê Hoàng. Yeah. Lê Hoàng is very successful king. He was two very big war, Vietnam with Cambodia and Vietnam with China. Yeah. 40 years. After Lê Hoàng king died, yeah, the power moved to Lý Công Uẩn, yeah, and Lý dynasty opened. And I said that on the bus, Lý Công Uẩn, one day he slept and he dreamed, and dream about very good land, higher land, yeah, and he went out and found out the Hanoi, yeah, and moved all government to Hanoi. And you can see, here before. बहुत ज़्यादा गर्मी थी Ninh Binh में एंड हमारी हालत ख़राब हो रही थी। इट रियली फील लाइक हम लोग मेल्ट कर जाएंगे। So the one here to
local people, to Vietnamese people. Yeah. क्या बोला? To be careful from China. That is what. Vietnam was a colony of China. So this is why they have written it over. Beware of China. To protect this area, this animal, your imagination put a lot of animals. Dragon. Yeah. बोलो, Ruma, you want to say something about the hotness of other countries? I think you'll have to get those malmal fabric clothes. The ones you carry. What is this? Dragon bed. Yeah, you already right? But not for sleeping. Yeah, not for sleeping. Yeah, you can see covering here very hard for sleep. Yeah, it's for worshipping the king. Yeah, for worshipping the king. In Vietnam, we have two dragon beds. There's one here and one inside. Yeah. Oh. Yeah, the chopstick made from this tree, Kim Sa tree here. Yeah, if the chopstick that's the poison, they turn to black color. Yeah, so Oh, nice. the chopstick you can testing the food before eating. What is the name of the tree you said? Huh? Name Kim of the Sao. King Zhao. Yeah, Kim Sao tree. Yeah, very rare in nature. No, not is a pink flag. Yeah, colorful flag here. Yeah, present for the temple. Okay. When you see the flag here, you can understand that this area here is the temple. Yeah. We move this way. The flag here we have 5 colors. Present for 5 elements of the world. Yeah. The red for fire. The red for fire. Can you guess the green for mud? The nature? No. Nature? Tree. Yeah, for the tree. And blue for water. Yeah, water. Yeah, water. इस समय हम हाउलू में थे, जो कि हाउलू एंड बाइदिन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हम घूम रहे थे। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पे। आगे हम टेम्पल में भी गए। दिस प्लेस इज़ अ सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर ऑल्सो। निन्बिन को कहा जाता है एज हलोंग बे ऑन लैंड। यहाँ की जो आसपास के सीनरी है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो लोग हलोंग बे नहीं जाते हैं वो अक्सर निन्बिन आ जाते हैं। Very cute, right? Yes, see the goat, then eat the goat. Yeah. फाइनली हमने एक वियतनामीज फैन ले लिया था टू बीट द हीट। ये पूरा 2 घंटे का टूर है एंड इट इज़ रियली एग्जॉस्टिंग एंड ख़ास तौर पे जो यहाँ की गर्मी है इट्स अनबेरेबल। काफ़ी साल के बाद रोड पे साइकिल चलाने में थोड़ा डर भी लग रहा था, पर बहुत मज़ा भी आया। एंड फाइनली हमारा ये टूर ख़त्म हो गया एंड हम निकल पड़े आगे अपने लंच के लिए। लंच पे हमें जिस रेस्टोरेंट में रोका गया था ऑब्वियसली इंडियन फूड नहीं था, बट जो खाना था हम उसमें से कुछ चूज़ कर सकते थे। आफ्टर सुपर लाइट लंच हम निकल पड़े टैमकॉक विलेज के लिए, जहाँ पे हमारी बोट राइड थी 2 घंटे के लिए। हम चाहते तो थे कि हम 3:30 तक वहाँ पहुँचे, बट हमारी बस पहले ही वहाँ आ गई एंड हम तैयार हो गए इस राइड को एक्सपीरियंस करने के लिए।
हमारा बोट राइड है। एंड कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये टैम्पो हमारे पूरा रिवर का रिवर राइड है, बोट राइड। यहाँ पे बोट चलाने का टेक्निक बड़ा ही यूनिक था। हमने हमेशा हाथों से बोट को चलाते हुए देखा था, बट यहाँ पे पैर से ये लोग बोट चलाते हैं, रो करते हैं। एंड हर एक आदमी ऐसे ही कर रहा था, तो पहले बड़ा फ़नी लग रहा था, बट अब समझ में आता है कि 2 घंटे की ये जो राइड है कोई भी थक सकता है। बहुत ही खूबसूरत है ये टैमकॉक विलेज का राइड। जगह जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे एंड माउंटेन्स देखने के लिए मिला, हमें डक देखने के लिए मिले एंड एक अलग एक्सपीरियंस है। आई थिंक सो अगर आपको हलोंग बे नहीं जाना है, आपको वो हलोंग बे में क्रूज़ पे नहीं जाना है, तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन आई थिंक सो। First look at duck, then have fried duck. ये देखिए सामने आपको घाट के जैसा बना हुआ है एंड ये बैनियन ट्री नहीं है बट समथिंग वेरी सिमिलर टू इट। अभी क्लाइमेट अच्छा हो गया है, धूप कम हो गई है और गर्मी कम लग रही है हम लोग को इस समय। आई थिंक सो यहाँ पे सही टाइम आने का विल बी पोस्ट 2:30, जब थोड़ा सा धूप कम हो जाए। 2:33 के बाद अगर आप आएंगे तो
यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी प्लेजेंट मिलेगा आपको। 4 to 6, यस 4 to 6 इज़ परफेक्ट। पर यहाँ अंधेरा भी जल्दी होता है ना, तो एटलीस्ट आपका बोट राइड 4 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटे का राइड है। ये देखिए हम सामने फिर से एक केव में आ रहे हैं। व्यू पॉइंट स्टाइल तक कम नहीं है। On our way back. अच्छा लग रहा है केव के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में ये बूंदाबांदी होते जा रही है पानी की। हाँ, और क्या लग रहा है ज़रा बताइए मैडम। ठंडक का एहसास हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अंदर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बाहर जाने में डर लग रहा है मुझे, इतनी चिन्नाटिया धूप है ना बाहर। ओ ये अरे यार क्या बात है रुमा। हाउ लॉन्ग केव नंबर 2 पर झुकूंगी। डक 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 क्यूट क्यूट कुत्ता नहीं है वो। ये बोट राइड अच्छा है। ऑलमोस्ट हो गया 2 घंटे हम लोग को। हमारा बोट राइड जो बोट चलाने का जो टेक्निक है वो बहुत ही यूनिक है अपने आप में। इंडिया में तो हम हाथ से करते देखते हैं, ये स्टार्ट टू एंड ये बोट राइड पैर से होता है।
मुझे लगता है रात में भी ये लोग के पैर ऐसे ही चलते रहते हैं। आप पर यहाँ आए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक ऐसा बोट मिले जिसमें अम्ब्रेला हो। हर बोट में अम्ब्रेला नहीं होती है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें अम्ब्रेला दे दिया जाए, जो कि हमने कहीं कहीं यूज़ किया और कभी कभी नहीं यूज़ किया है। दोपहर में मत आइएगा, हम आ गए हैं, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अगर आपको आना है तो आप इस तरह से अपने टूर गाइड से कहिए कि उस ट्रिप को प्लान करें कि आप 3:30 तक यहाँ पहुँच जाइए, 3:30 पौने 4 तक, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना ये टाइम इट इज़ टू हॉट एंड आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी होगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हमें भी तो काफ़ी गर्मी लग रही है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा जब आप यहाँ निनबिन में आए इस राइड के लिए। इस राइड का हमने करीबन 3,500 रुपया दिया है। ये पूरे मतलब डे टूर जो हमने किया है निनबिन का, इंक्लूडिंग आर लंच, वॉज फॉर 3,500 फॉर 2 people। एंड हमें होटल से पिकअप किया गया था। एंड ये AC बसेस हैं, दे प्रोवाइड यू विथ वाटर, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड रहता है, वो आपको सब जगह मतलब हर पॉइंट पे टिकट के संग आपको पहुंचा देते हैं। तो आपको कहीं भी टिकट्स नहीं खरीदने हैं, कुछ नहीं, वो टूर गाइड ही सब कुछ देख लेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। हमने कोजी वियतनाम से अपना ये टूर बुक किया था। दे आर वेरी रिलायबल, उन लोग व्हाट्सएप में सब कुछ भेज दे रहे थे डिटेल्स। पीपल आर फ्रेंडली ओवर हियर। तो आपको हाँ लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अदरवाइज इट्स गुड। आई थिंक सो अक्टूबर नवंबर विल बी अ मच बेटर सीजन टू विजिट हियर। ये इनका स्टार्टिंग सीजन है, सितंबर इज देयर स्टार्टिंग सीजन। राहत का टाइम फिर से अच्छी है ये। अगर ये केव राइड अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा अप एंड डाउन है तो आप अपना थोड़ा सर बचा लीजिएगा। बट इस केव में ज़रूरत नहीं है, ये केव ठीक है। एक बार भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा। बुरी तरह से टैन हो गए थे, एग्जॉस्टेड हो गए थे, गर्मी हमें से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमारे पीछे भी जो लोग थे वो परेशान हो गए थे यहाँ की गर्मी से। एंड इस तरह हमारा निनबिन का टूर ख़त्म हुआ एंड हमें वापस पहुँचना था हैनोई, जहाँ पे हम रात में जाने वाले थे वहाँ के फेमस ट्रेन स्टेशन पे। ये चलिए हमारी बिग थैंक यू टू थू, हमारी टूर गाइड, एंड हेल्पिंग अस आउट विद ऑल द ट्रेन स्टेशन टाइम। हम इस राइड के लिए चले गए। ये एक 45 मिनट्स की इस स्पेशल रिक्शा की राइड थी जिसमें हम वियतनाम के नाइट लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने 250 डोंग दिए थे इस राइड के लिए। राइड ख़त्म होने के बाद हम आ गए ट्रेन स्टेशन पे। हर इंस्टाग्राम पे हमने इस जगह का वीडियो देखा था एंड हम भी एक्साइटेड थे जाने के लिए, बट पर्सनली आई थिंक दिस इज़ एन ओवररेटेड प्लेस एंड जस्ट अ मनी मेकिंग प्लेस। कुछ भी इतना फैंटास्टिक नहीं है यहाँ का। आप अगर ड्रिंक्स नहीं लेंगे, अगर आप कुछ खरीदेंगे नहीं, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू इवन सिट ओवर हियर। तो आपको पहले उनको बताना होगा वेदर यू वांट टू हैव बियर और यू वांट टू हैव कॉफ़ी, एंड उसके बाद दे विल टेल यू विच शॉप टू सिट। यहाँ पे ट्रेन इज़ नेवर ऑन टाइम, तो आप ये एक मनी मेकिंग एरिया है जहाँ आप जाएंगे। अगर 7:15 लिखा है तो ट्रेन माइट कम बाय 7:45 एंड यू विल हैव टू स्पेंड मनी ओवर हियर टू गेट द फोटोग्राफ्स। तो आई पर्सनली मुझे ये जगह उतनी कुछ खास नहीं लगी। हम आ गए थे तो ऑफकोर्स हमें एक्साइटमेंट दिखानी थी, भाई हम इतने पैसे खर्चे हो चुके थे तो भाई आप खुश भी हो जाओ। बट इट इज़ अ फैक्ट दैट यू कैन गिव इट अ मिस, वरना आगे एक जंक्शन है जहाँ से भी आप ये सेम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बियर के कैप को ट्रैक पे रख दीजिए, जो बाद में ऐसा कुछ दिखता है आफ्टर द ट्रेन पासेस। दिस एंटायर एरिया वाज एम्प्टी आफ्टर द ट्रेन पास्ड एंड
कुछ लोग अगले ट्रेन के लिए वेट करने के लिए यहाँ के बैठ चुके थे। ऑल इन ऑल आप चाहें तो बस जाके वहाँ फ़ोटो खिंचवा के आ जाइए। उतना कुछ वाव फैक्टर मुझे नहीं लगा, इतना एक्साइटमेंट नहीं था वहाँ का।